जब मैं प्रभु में आया नया नया और मैं जब जाता था इधर उधर उसके बारे में बताने, तो जब लोग कहते थे अरे आप तो बड़े जवान लगते, तुम्हें बड़ा बुरा लगता था, अब लोग बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। When I had come to the Lord and I would go and preach, people would say, "You look very young." I would mind it, but now I like it. Amen? ये प्रगटीकरण है कि उसका वचन सच्चा है। This is the manifestation that His word is true. Amen, hallelujah. So, जैसे मैंने आपको बताया, As I told you, He redeems our life from destruction. वो हमारे जीवन को विनाश से बचा लेता है। So, हम लोग इस समय Psalm 91 साथ में डिक्लेयर करेंगे। Can you put it on the screen? We will साथ declare- में हम एक कलीसिया की तरह Psalm 91 पहले इंग्लिश में डिक्लेयर करेंगे, फिर हिंदी में करेंगे। मगर केवल डिक्लेयर करना काफी नहीं है, दिल में विश्वास करना है और फिर मुंह से अंगीकार करना है। We will declare Psalm 91 together as a church, first in English, then in Hindi. But don't just declare it. Believe it in your heart and then say it out of your mouth. और आपको ये मानना है हर एक लाइन, हर एक बिंदु, हर एक चीज जो इसमें लिखी है वो हाँ और आमीन के साथ मेरे जीवन में पूरी होती है। And you have to believe that every line, every dot, everything written, every detail is fulfilled in your life with a yes and a amen. Amen. Can we all stand to honor the word of God? अपने साथ मिलकर खड़े हो परमेश्वर के वचन का आदर करने के लिए। Amen. कैसे करेंगे हम? How will we do it? विश्वास से। By faith. प्रतिज्ञाओं को कैसे पकड़ा जाता है? How do we grab hold of विश्वास promises? से। By faith. हाँ? साथ में करेंगे। पहले इंग्लिश फिर हिंदी, ठीक है? रेडी? नहीं, हिंदी हटा दो पहले। We'll just do English first, then we'll वो अटपटा लगेगा वाला। ओके, तैयार हैं आप लोग? ओके, 1 2 3। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at my side, and 10,000 at my right hand, but it shall not come near me. Come on, we are going to personalize it. Only with my eyes shall I look and see the reward of the wicked, because I have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, my dwelling place. No evil shall befall me, nor shall any plague come near my dwelling. For He shall give His angels charge over me to keep me in all my ways. In their hands they shall bear me up, lest I dash my foot against a stone. I shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent I shall trample underfoot. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver Him. I will set Him on high, because He has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Amen. Okay, we are going to put Hindi now. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। मैं ना रात के भय से डरूंगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है।
न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास न आएगा। परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति मुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं मैं जाऊं वे मेरी रक्षा करें। वे मुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा। ये परमेश्वर के लिए, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आमीन। मगर यहां नहीं है, मैंने कुछ घोषणाएं आप लोगों के लिए बनाई हैं इस समय। और अब पहले पास्टर सामर्थ बोलेंगे इंग्लिश में, फिर आप उनको फॉलो करना, उसके बाद हम हिंदी में करेंगे। क्योंकि ताकि इसके बाद वो पार्ट वीडियो का हम आपको दे देंगे, आप उसको लगा के रात को सो सको, declaration, और आप साथ मिलके रोज घोषणा कर सको। We will make some declarations together so that we can give you that video and you can put those declarations every day when you sleep. Amen. Hallelujah. Faith तब तक activated नहीं होता. Faith is voice activated. क्या है faith? विश्वास ध्वनि के द्वारा कार्यशील होता है. अगर मन में है तो नहीं काम करेगा. If it's in your heart, it will not work. घोषणा करनी पड़ेगी, मुंह से बाहर बोलना. You have to speak it out of your mouth. Okay, चलिए. I declare that no weapon formed against me or my family shall prosper, and every tongue that rises against us is condemned. मैं घोषणा करता हूं कि मेरे और मेरे परिवार के विरुद्ध कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, और जो कोई हमारे विरुद्ध बोलेगा वह दोषी ठहरेगा. I declare that my family and I dwell in the secret place of the Most High, abiding safely under the shadow of the Almighty. No evil shall come near us. मैं घोषणा करता हूं कि मेरा परिवार और मैं परम प्रधान परमेश्वर के गुप्त स्थान में निवास करते हैं, और सर्वशक्तिमान की छाया में सुरक्षित हैं. कोई भी विपत्ति हमारे निकट नहीं आएगी. I declare the Lord is the refuge and fortress for me and my family. He delivers us from every trap and protects us from every deadly disease. मैं घोषणा करता हूं कि यहोवा मेरा और मेरे परिवार का शरण स्थान और गढ़ है. वह हमें हर जाल से और हर जानलेवा बीमारी से बचाता है. I declare that angels surround my family and me, encamping around us and guarding us in all our ways. मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरे परिवार और मेरे चारों ओर डेरा डाले हुए हैं, और हमारी सारी राहों में हमारी रक्षा करते हैं. I declare my family and I are covered and protected by the precious blood of Jesus.
The enemy has no access or authority over us or our household. मैं घोषणा करता हूं कि मैं और मेरा परिवार प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से ढके हुए हैं और सुरक्षित हैं। शत्रु का हमारे घर और जीवन में कोई प्रवेश या अधिकार नहीं है। I declare supernatural peace reigns in my family. Fear, anxiety, and panic have no place in our hearts or minds. Christ's peace guards our home. मैं घोषणा करता हूं कि अलौकिक शांति मेरे परिवार में राज करती है। भय, चिंता और घबराहट हमारे हृदय और मन में कोई स्थान नहीं रखती। मसीह की शांति हमारे घर की रक्षा करती है। I declare, though 1,000 may fall at our side and 10,000 at our right hand, danger and destruction will never come near my family or me. मैं घोषणा करता हूं कि चाहे 1,000 मेरी बगल में और 10,000 मेरी दाहिनी ओर गिरे, विनाश और संकट मेरे और मेरे परिवार के निकट नहीं आएगा। I declare, my family and I have authority over all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm us. मैं घोषणा करता हूं कि मेरे और मेरे परिवार के पास शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार है और हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचेगी। I declare, the Lord goes before my family and me. He is also our rear guard. We walk securely, surrounded by God's favor and protection. मैं घोषणा करता हूं कि यहोवा हमारे आगे चलता है और वह हमारी पीछे से रक्षा भी करता है। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की कृपा और सुरक्षा से चारों ओर से घिरे हुए हैं और हम सुरक्षित चलते हैं। I declare, my family and I dwell in spiritual Goshen, safe, secure, protected, and unaffected by the chaos around us. God's supernatural presence is our constant refuge. मैं घोषणा करता हूं कि मैं और मेरा परिवार आत्मिक गोशेन में रहते हैं, सुरक्षित, संरक्षित और संसार की विपत्ति और अंधकार से अछूते। परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति हमारा निरंतर शरण स्थान है। I declare that all these declarations are already established in the spiritual realm. In Jesus' mighty name. Amen. मैं घोषणा करता हूं कि ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आत्मिक क्षेत्र में स्थापित हो चुकी हैं। और कलीसिया ने कहा आमीन। आमीन। हालेलुया।